Hello and welcome to the online classes for grade 9 students. Now, from our book of Beehive, chapter number 9, The Bond of Love. This is a new chapter, so to begin the story, first let us understand what it is about. Now, this story is about a sloth bear. A bear is this animal you can see in this picture here, and sloth means a lazy animal. Okay, so sloth bears are found in the jungles. It is a wild animal. So in this story, we are going to know, can a human being and a wild animal be friends? Okay, can there be friendship between human beings and wild animals? Wild animals are harmful to humans, but then in this story, we will see how the author has helped an orphaned sloth bear. Orphaned means when the parents are dead. Okay, so we have a little description about the sloth bear. You can see it has a long snout here. Okay, it has shaggy hair, that is rough hair, and look at these fingers, okay, are called the claws. This word here, claws, means this front part of the hands and the legs. Okay, they use them to dig the ground, and after digging the ground they can push in this long part of their nose like a tube into the ground to search for food. And the main food that they eat are termites. Termites are the little insects that are found in the ground. Okay, and they can suck up their food from several feet away. You see, their mouth here is really long, so that is why they have this ability to suck from a distance. Now let us begin with the story. I will begin with Bruno, my wife's pet sloth bear. I got him for her by accident. Now the name of his wife's pet sloth bear is Bruno, and he got him by accident, that is to say by chance. Now let us know how he got that pet sloth bear. 2 years ago, we were passing through the sugarcane fields near Mysore. People were driving away the wild pigs from the fields by shooting at them. Some were shot and some escaped. We thought that everything was over when suddenly a black sloth bear came out panting in the hot sun. Now this is how the story begins. 2 years ago, okay, we were passing through sugarcane fields near Mysore. Mysore is a place, okay? वहाँ पर sugarcane fields थे, and वहाँ पर people were driving away the wild pigs, that is the wild animals जो जंगल के थे pigs. They were driving them away, उन्हें भगा रहे थे किस तरह से, shoot करके, that is using guns they were shooting. Some were shot, कुछ को तो गोली लग गई थी, while some escaped, बच गए थे. Then suddenly we thought everything was over when a black sloth bear came out panting in the sun. We thought that all the animals have escaped when suddenly a black sloth bear, okay, it was black in color and it came out panting. Panting का मतलब होता है हाँपते हुए, ठीक है, गर्म धूप में वो हाँपते हुए बाहर निकल के आता है. Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but अब ऑथर हमें बताते हैं कि वो तो एक स्लॉथ बियर को नहीं मारेंगे. wantonly means for no good reason, मतलब कि बिना वजह के. but unfortunately for the poor beast, one of my companions, मतलब जो उनके साथी थे, did not feel that way about it and promptly shot the bear on the spot. and वो एकदम उस भालू को, ठीक है, जो भालू होता है बियर, उसको शूट कर देते हैं. अब देखो आगे क्या होता है. जब वो शूट कर देते हैं, as we watched the fallen animal, we were surprised to see that the black fur on its back moved and left the prostrate body. अब जब उसे गोली लगती है तो वो गिर जाता है, ठीक है, लेकिन हमें सडनली हैरत हुई क्या देखते हुए कि उसकी जो बैक थी, मतलब उसकी कमर पे ब्लैक कलर का फर का मूवमेंट होता है. फर दैट इज़ द हेयर, वहाँ एक मूवमेंट होती है उस प्रोस्ट्रेट बॉडी को छोड़कर, मतलब बियर की जो प्रोस्ट्रेटेड बॉडी थी. प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है कि जब हम ज़मीन पे लेटते हैं अपना मुंह ज़मीन की तरफ करके. सो जब हमने ये देखा कि ऐसा मूवमेंट होता है तो उसके बाद हमें क्या दिखता है, देन वी सॉ दैट इट वॉज अ बेबी बियर दैट हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक व्हेन द सडन शॉट हैड किल्ड हर. अब वो जो मूवमेंट था वो एक छोटे से बेबी बियर का था, उसका बच्चा था जो उसकी कमर पे था, एंड जब उसे गोली लगी वो मर गई तो वो बच्चा उतर गया. The little creature ran around its prostrate parent making a pitiful noise. वो छोटा सा जो बच्चा था वो अपने पेरेंट के, मतलब उस मदर के चारों तरफ फिरता रहा रोता हुआ. I ran up to it to attempt a capture. It scooted into the sugarcane field,
Following it with my companions, I was at last able to grab it by the scruff of its neck, while it snapped and tried to scratch me with its long, hooked claws. अब मैं फ़ौरन भागता हूँ उसके पास उसे कैप्चर करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए. इट स्कूटेड अवे, दैट मीन्स रैन अवे. छोटा सा बच्चा जैसे भाग के जाता है शुगर केन की फील्ड में, ठीक है. शुगर केन दैट इज़ गन्ना, एंड फील्ड जो खेत होते हैं. अपने साथियों के साथ में उसके पीछे भागा, एंड एट लास्ट आई वॉज एबल टू ग्रैब इट. ग्रैब मीन्स पकड़ना. कैसे पकड़ा था? स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, जो बिल्कुल गर्दन के ऊपर एक्स्ट्रा स्किन होती है. आपने देखा होगा ये जानवरों में होती है, अक्सर बिल्ली में भी होती है, कुत्ते में एक्स्ट्रा स्किन होती है, उससे उसे पकड़ा, ठीक है. एंड इट ट्राइड, वो कोशिश कर रहा था अपने आप को रेस्क्यू करने की, बचने की. एंड यहाँ तक कि मुझे खुरचना, स्क्रैच मीन्स जैसे खुरचते या पंजा मारते हैं. लॉन्ग हुक्ड क्लॉज, क्लॉज एज आई शोड यू, उनकी जो फिंगर्स होते हैं, नेल्स होते हैं, इतने शार्प होते हैं. We put it in one of the gunny bags we had brought, and when I got back to Bangalore, I duly presented it to my wife. She was delighted. अब मैं उसे अपने एक बैग में डालता हूँ, दैट इज़ गनी बैग्स, जिसमें हम सामान रखते हैं. एंड बेंगलोर पहुँचते ही मैंने वो अपनी वाइफ को दिया एज अ गिफ्ट. शी वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश हुई. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन, ओके, शी इमीडिएटली पुट अ कलर्ड रिबन ऑन इट्स नेक. अब आपने देखा होगा हम अपने पेट्स के जो है गर्दन में रिबन्स डालते हैं. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कप वॉज अ बॉय, शी क्रिस्टन इट ब्रूनो. एंड जब उसे ये पता चला कि वो जो बेबी बियर है वो एक मेल है, ठीक है, दैट इज मेल इन जेंडर, तो उसका नाम वो रखती है ब्रूनो. ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंक इन मिल्क फ्रॉम अ बॉटल. It was but a step further, and within a very few days he started eating and drinking everything else. अब वो एक बेबी बियर था, छोटा था, ठीक है. सो उसको एक बॉटल से दूध भी पिलाया जाता था, एंड कुछ दिनों में खाना पीना भी शुरू हो चुका था. एंड एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, फॉर ही एट porridge made from any ingredients, that is vegetables, fruits, nuts, meat, especially pork, curry and rice regardless of condiments and chilies, bread, eggs, chocolates, sweets, pudding, ice cream. So वो everything, that means वो सब कुछ खाता था, okay. Pork means the meat of a pig, that is what pork is called. Condiments are spices and chilies, bread, eggs, सब कुछ खाता था. As for drink, milk, tea, coffee, lime juice, ठीक है, पीने का भी सब कुछ पीता था, पानी पीता था, चाय, कॉफ़ी, liquid, beer, and in fact anything liquid. The beer became very attached to our Alastian dogs and to all the children of the tenants living in our bungalow. ओके, सो जो बियर था काफ़ी अटैच हो गया था. मतलब अटैचमेंट का मतलब होता है जब हम एक साथ रहते हैं, सो एक फीलिंग शेयर करते हैं खेलने में, एंड वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था किसी बच्चे को भी, और ना जो बाकी वहाँ पर पेट्स थे. ओके, ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंड हिज टाइम इन प्लेइंग, रनिंग इन टू द किचन एंड गोइंग टू स्लीप इन आवर बेड्स. सो काफ़ी टाइम जब वो छोटा था खेलता रहता था, इधर उधर भागता था, किचन में जाता था, यहाँ तक कि हमारे बेड्स में सो जाता था. One day an accident befell him. अब उसके साथ एक हादसा होता है. I put down poison, that is barium carbonate, to kill the rats and mice that got into my library. अब देखिए, ये आप भी रखते होंगे अपने घर में, जब चूहे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हम उनकी दवा रखते हैं जिसको वो जहर कहते हैं, रैट पॉइजन. सो वो रख दिया था मैंने क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में काफ़ी चूहे हो रहे थे. Bruno entered the library as he often did, and he ate some of the poison. Paralysis set in to the extent that he could not stand on his feet. अब देखें, ब्रूनो लाइब्रेरी में घुसता है, उसे क्या पता कि क्या है, एंड वो थोड़ा सा खाता है. उसके बाद उसे पैरालिसिस होती है. पैरालिसिस जिसे कहते हैं ना, लकवा. सो उसके बाद वो खड़ा भी नहीं हो पाया. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी. फिर भी वो अपने आप को खींच खींच के घसीटते हुए आ गया. आई गेस्ड व्हाट हैड हैपेंड, मुझे फ़ौरन अंदाज़ा हो गया था कि क्या हुआ होगा. Off I rushed into the car to the vet's residence. A case of poisoning, tame beer, barium carbonate. What to do? अब देखें, vet is a veterinary doctor, मतलब जानवरों के जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है. सो उसके पास पहुंचते हैं, बताते हैं कि पॉइजनिंग है, घर का बियर है, एंड ये पॉइजन खा लिया. Out came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Ah, yes, barium salts, barium carbonate. Symptoms, paralysis, treatment, injections of. Just a minute, I will bring my syringe and medicine. So ये जो था, ये वेट के बारे में है. वेट अपनी मेडिकल बुक निकालते हैं, एंड इंडेक्स में, दैट इज़ जो स्टार्टिंग में हमारी लिस्ट होती है, ठीक है,
उसे उसमें ढूंढते हैं बेरियम कार्बोनेट। उसके बाद उसका जो सिम्टम्स है मतलब पैरालिसिस जो ब्रूनो को हो चुका था एंड उसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शंस, ठीक है। सो वो अपनी सिरिंज एंड मेडिसिन लेने जाते हैं। ए डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल floundering about on his stumps but clearly weakening rapidly, same vomiting, heavy breathing and with heavy flanks and gaping mouth. वो गाड़ी में पहुंचते हैं, ब्रूनो अभी भी बहुत परेशान था, वीक होता रहा, सम वोमिटिंग, थोड़ी उल्टी हो रही थी, भारी सांसें हो रही थी, ठीक है, एंड उसका मुंह खुला हुआ था। Hold him everybody, in goes the hypodermic. Bruno squeals, 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. सो सब उसे पकड़ते हैं और वो इंजेक्शन जो लगाता है, ठीक है, एंटीडोट, जब भी पॉइजन होता है तो उसकी जो दवा होती है उसे हम एंटीडोट बोलते हैं। सो उसके सिस्टम में मतलब कि उसकी बॉडी में डालते हैं। 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज्ड, 10 मिनट हो गए अभी भी कोई चेंज नहीं आया था। अनदर 10 cc इंजेक्टेड, दोबारा 10 cc, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द दवा, द एंटीडोट दैट वाज इंजेक्टेड इन हिज बॉडी। 10 मिनट्स लेटर ब्रीदिंग लेस stertorous, Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. So 10 minutes later थोड़ी सी तबीयत उसकी थोड़ी बेटर होती है, वो अपने हाथ पैर थोड़ा हिलाता है लेकिन अभी भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। 30 minutes later Bruno gets up and has a great feed. और आधे घंटे बाद ब्रूनो उठ जाता है, खड़ा हो जाता है एंड अच्छे से खाना खाता है। He looks at us disdainfully, as much as to say, what's barium carbonate to a big black bear like me? Bruno is still eating. कुछ देर बाद जब वो खड़ा हो जाता है, हमारी तरफ देखता है और हमें ऐसा लगता है जैसे वो ये पूछना चाहता है कि बेरियम कार्बोनेट जैसे पॉइजन का एक एक बिग ब्लैक बियर मेरे जैसे भालू पे क्या असर पड़ सकता है। ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग एंड वो सही से अपना खा पी रहा है। अनदर टाइम he found nearly 1 gallon of old engine oil which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. अब टर्माइट्स के लिए हम काला तेल डालते हैं, आप सबको ये पता होता है, लेकिन ब्रूनो को 1 गैलन मिलता है, दैट इज़ 1 कैन जो होती है ना गैलन, 5 लीटर्स एंड ऑल, वो गैलन मिलता है, उसमें तेल होता है, ठीक है, एंड उसने काफ़ी सारा पी लिया था, बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वट एवर, उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई असर नहीं पड़ा। द मंथ्स रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मेनी टाइम्स द साइज ही वॉज व्हेन ही केम. ही हैड इक्वल द एलेस्टियंस इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन देम. काफ़ी महीने निकल गए, ब्रूनो काफ़ी बड़ा हो चुका था, जितना छोटा सा था, यहाँ तक कि जो एलेस्टियन डॉग्स थे उनसे भी हाइट में बढ़ चुका था। बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल, लेकिन वो अभी भी बहुत प्यारा था, जैसे छोटा था। एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू, एंड वो हम सभी के साथ बहुत अच्छे से था। शी हैड चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, ए हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. And he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle or Baba box, he vigorously tackled anyone who came forward for a rough and tumble. So उनकी जो वाइफ थी होता कि उन्होंने उनका नाम भी ब्रूनो से बाबा कर दिया था, जो कि इंडिया में छोटे बच्चे को कहते हैं। सो जब भी वो ये कमांड्स भी सिखा चुकी थी कि बाबा रेसल या बाबा बॉक्स मतलब कि लड़ो झगड़ो, सो वो आगे आके खेलता था। गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. उसे अगर आप लकड़ी दो और उससे कहो कि बाबा होल्ड गन मतलब बंदूक पकड़ो, तो वो उस लकड़ी को आपकी तरफ एक बंदूक की तरह पकड़ता था। आस्क हिम बाबा वेयर्स बेबी एंड ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेटल. अगर उससे ये पूछा जाए कि बाबा बेबी कहाँ है, तो वो फ़ौरन एक बच्चे की तरह, ठीक है, स्टम्प ऑफ वुड, एक बच्चा उठाता है एंड उसे दिखाता है कि एक बेबी है. बट बिकॉज ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन, पोर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेंज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. अब जो वहाँ पर ऑल रोड रहते थे उनके छोटे बच्चे थे और इस वजह से ब्रूनो को, या उनका जो दूसरा नाम था बाबा, उसको अक्सर चेन मतलब बांध के रखा जाता था. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी.